علی کی شہزادی، علی کی شہزادی امام حسین کی بہن، اور آپ کے بولو محبت سے سبحان اللہ۔ امام حسین کی بہن فرماتی ہے میرے بھائی آپ پر سخت مصیبت آن پڑی ہے، میں چاہتی ہوں صدقہ کروں۔ صدقہ اس چیز کا کیا جاتا ہے پیارے، صدقہ ہوتا ہے پیسے کا، دولت کا، ہیرے جواہرات کا۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ میدان کربلا میں کچھ نہیں تھا، نہ دولت ہے، نہ پیسہ ہے، نہ ہیرے جواہرات ہے۔ ایسا ہی اگر زینب کس چیز کا صدقہ کرنا چاہتی ہے میدان کربلا میں، بے شک بے شک کس چیز کا؟ سیدہ زینب فرماتی ہے اپنے بیٹوں کا صدقہ کروں گی، اپنے دونوں شہزادوں کا صدقہ کروں گی۔ اللہ یہ زینب میدان کربلا میں صدقہ کی بات، بیٹوں کو کتنے بڑے ہیں بیٹے، سیدہ زینب فرماتی عمر نہیں دیکھی جاتی، حوصلے دیکھے جاتے، عمر نہیں دیکھی جاتی، پھر کیا دیکھا جاتا ہے؟ سیدہ زینب میدان کربلا سے آواز دیتی ہے عمر نہیں دیکھی جاتی، حوصلہ دیکھا جاتا۔ کتنے سال کے ہیں آل محمد؟ تاریخ گواہ ہے 8 یا 10 سال کا، 8 یا 9 سال، عمر چھوٹی ہے۔ بے شک شوق شہادت دیکھا ہے، بے شک شوق شہادت۔ بھائی کی بارگاہ میں کہا بھائی قربان کرنا چاہتی ہوں، آپ کے قدموں میں ان کی جانوں کو نچھاور کرنا چاہتی ہوں، اجازت چاہیے آپ کی۔ کہا بہن میرے سامنے تیری گود خالی ہو، مجھے گوارا نہیں، اجازت نہیں ہے۔ کہا بھائی صدقہ کرنا چاہتی ہوں، اجازت دے دے۔ کہا نہیں، اسرار کرتی رہی، اسرار کرتی رہی، اجازت طلب کرتی رہی، آخرکار امام پاک کو ماننا پڑا، بہن کے جذبے کو سلام کرنا پڑا۔ امام پاک فرماتے ہیں ٹھیک ہے میری بہن اجازت دے دیا تجھے، جا۔ حضرت زینب اپنے خیمے میں گئی، بچوں کو سنوارنا سجانا شروع کیا۔ سجانے کے بعد امامہ باندھا، امامہ باندھنے کے بعد چھوٹی چھوٹی تلواریں دی۔ کہا بیٹے میدان میں جانے سے پہلے میرے سینے سے لگ جاؤ۔ کیسا جذبہ ہے، کیسی محبت ہے بے شک دین کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، دین کے لیے۔ کہا سینے سے لگ جاؤ۔ ماں کو بھی معلوم میں اس جگہ اپنے بیٹوں کو بھیج رہی ہوں جہاں جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا، جہاں کوئی جاتا ہے واپس نہیں آتا، لیکن محبت شوق شہادت دیکھیں۔ گئے ماں کے سینے سے لگ گئی، ماں نے کہا بیٹا جاؤ اپنے ماموں امام حسین کے قدم، جنتی جوانوں کے قدم کو بوسہ دیا، میدان میں چلے گئے۔ میدان میں کتنے تھے مقابلے میں؟ تاریخ بتاتی ہے 22,000۔ بے شک بے شک ایسا گاڑ دو یہ تو لے کے چلے جاؤ۔ یار کیا کر رہے ہو، ہمارا ڈرامہ کر رہے ہو فرضی میں، بیچ میں دماغ خراب کر رہے ہو، فرضی والا کام کر رہے ہو۔ امام حسین میدان کربلا میں، بے شک بچے میدان میں، عمر تھی 8 یا 9 سال، 8-9 سال کی عمر میں، چھوٹی چھوٹی تلواریں ہیں ہاتھ میں، میدان میں گئے۔ مقابلے میں کتنے تھے؟ 22,000۔ حسینی کتنے تھے؟ 72۔ ان میں ان 72 میں بھی 8 سال کے، 7 سال کے، 6 سال کے، بے شک 6 ماہ کے، بے شک سبحان 6 ماہ تک کے مجاہد امام حسین کے خیمے میں جمع۔ بے شک سبحان 72 افراد میں 6 ماہ کے بھی ہیں۔ بے شک جب میدان میں گئے مقابلہ کیا تو لوگوں نے سمجھا تھا یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، چوٹیوں کی طرح مسل دیں گے انہیں، لیکن عمر بن سعد نے دیکھا جذبے کو، دیکھا حوصلے کو، پکار اٹھا اے یزیدیو ان کو تم بچہ سمجھ رہے ہو، بچہ نہ سمجھو، ان کی رگوں میں ان کی نسوں میں کس کا خون ہے جانتے ہو؟ ارے یہ وہ گھرانے کے رہنے والے ہیں جس نے اپنے دم پر باب خیبر کے قلعے کو فتح، یہ امام حسین کے خاندان کے ہیں۔ ارے خاندان چھوڑو، نواسے ہیں، نواسے، علی کے شہزادے، علی کے نواسے۔ اللہ اکبر، مقابلہ کیا ہے اس شان سے نا، یزیدی سہم گئے،
बेशक जो 22,000 थे सहम गए, कहने लगे, उमर बिन साद पुकारने लगा, अरे दीदियों देखने का वक्त नहीं, दो करके जाने का वक्त नहीं, क्या किया जाए, कैसे मुकाबला किया जाए। कहा 2 4 10 जाओगे तो फौज खत्म हो जाएगी, लेकिन इनका हौसला खत्म नहीं। बेशक सुभान अल्लाह 22,000 खत्म हो जाएंगे, हौसला खत्म नहीं होगा, मुकाबला करते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि उमर बिन साद तक पहुंचे, अनकरीब था कि छोटी छोटी तलवारों से उमर बिन साद की गर्दन जमीन पे होती। उमर बिन साद पुकारा, अरे यजीदियों इनको कमसिन न समझो, छोटा न समझो, एक बार की हमला कर दो। आप बताओ यार, अगर चारों तरफ से तीरें हर चले, जगह सुभान अल्लाह पंछियां चले, तलवारों की धारें चले, बताओ क्या ये मुकाबला है, क्या ये जंग करने का अंदाज सही है, क्या ये जंग करने का अंदाज सही। अगर दम होता 2 4 करके भेज के देख लेता, छोटे छोटे बच्चे को हौसले को देखता। बेशक अल्लाह अल्लाह, जब चारों तरफ से वारें होने लगी है ना, इमाम पाक के दोनों नवासे, दोनों भांजे अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे शहीद हो गए मैदान करबला में। और उमर बिन साद पुकारा, ए हुसैन, आए हुसैन, बोल देख रहा हूं, बच्चों को ले जाओ। जब बच्चे शहीद हो गए, हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सुना, अल्लाह की बारगाह में सर को सजदे में, ए अल्लाह तेरा शुक्र है। किस बात की शुक्र अदा कर रही है हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मैदान करबला में अर्ज करती, ए मौला तेरा शुक्र है, तूने मेरे शहजादों को कबूल किया, मेरी कमाई इस्लाम के काम आई, मौला तेरा शुक्र है। अल्लाह पर हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा रब का सजदा शुक्र अदा करती हैं। इमाम हुसैन मैदान रन में गए, शहजादों को उठाया, झोली में डाला, खेमे के अंदर कोहराम मच गया, इमाम फरमाते हैं, ऐ खानदानी नबूवत के चश्मे चरागो सुनो, तुम साबिर घर के घराने के रहने वाली हो, सब्र करो, तुम साबिरा की बेटी हो, सब्र करो, रोने का वक्त नहीं है, और आगे तुमको इम्तिहान देने हैं, सब्र करो। ये रमज दे भैया, बेशक पढ़ो मोहब्बत से कर दो सुभान अल्लाह। और मोहम्मद शहीद हो गए, शहीद होने के बाद 72 अफराद शहीद हुए करबला की सरजमीन पर, 72 के बाद दीगरे आते गए, अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। जब अहले बैत अतहार के कदमों में अपनी जानों को निछावर कर रहे थे आशिक, उन अहले बैत अतहार में एक ऐसा मुजाहिद था, ऐसा पहलवान, ऐसा ताकतवर, पत्थर सामने हो, इंसान छीनियां लेकर के पत्थर में अपने नाम को लिखा करता है और दीगर चीजों को लेकर पत्थर में निशानियां बनाया करता, लेकिन उस बहादुर को देखो, हजरत अब्बास अलमदार जो हजरत इमाम हुसैन के भाई है, भाई बेशक सुभान अल्लाह, अपने पैर के नाखून से पत्थर में लिख दिया। सुभान अल्लाह, ये ताकत होती थी, ताकत। अगर दम है तो कोई आ जाए मैदान में। जल्दी करो, हजरत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने पैर के नाखून से पत्थर में लिख दिया करते थे। दम है तो कोई करके दिखाए, दम है तो कोई करके दिखाए। ये क्या कर रहे थे मैदान में? ये हजरत इमाम हुसैन के खेमे की पहरेदारी कर रहे थे, बेशक सुभान अल्लाह, पहरेदारी कर रहे थे।
हुसैनी परचम को उठाए हुए थे। हुसैन के काफिले की सिपह सालारी फरमा रहे थे। खेमे के बाहर थे। खेमे में क्या हो रहा था, आवाज जो आ रही थी सुनते थे। उसी खेमे के अंदर एक 7 साल की बच्ची थी जिनको दुनिया हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा, वो सकीना देखती है। खुद 7 साल की उम्र है, खुद 7 साल की बच्ची है, लेकिन सब्र देखो सब। अगर हमारे बच्चों को एक दिन खाना न मिले तो हराम मच जाएगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 3 दिन हो गया, 3 दिन 7 साल की बच्ची अल्लाह तबारक व तआला के घर, हुजूर के घराने के शहजादी और शहजादी और शहजादे के हंसने को देखो। 7 साल की है, 3 दिन से नहीं खाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। देख क्या रही है खेमे में, अपने आप को न देखा अगर किसी को तो 6 माह के मासूम नन्हे अली असगर को देखा। अली असगर को देखती हुई खेमे से आती थी आवाजें, अल अतश अल अतश अल अतश अल अतश। इसका मतलब होता है पानी पानी पानी। और ये आवाज कौन देता था? छोटी छोटी बच्चियां। हजरत सकीना सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई हजरत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सूखे हुए हल्क को देखती। अपने भाई हजरत अली असगर 6 माह के थे, वो जब प्यास की शिद्दत इतनी हुई, 3 दिन हो गया पानी न मिला। दूध माँ के छाती में दूध सूख चुका है, सूखा हुआ दूध है, पिलाए तो क्या पिलाए। जब खुद न खाती थी तो बच्चों को क्या पिलाती, दूध सूख गया। हजरत सकीना ने अपने भाई को देखा, देखने के बाद क्या देखा, उनकी आंखों ने क्या देखा, भाई है 6 माह का है, 6 महीने का बच्चा अपनी जबान को हिलाता है, होठों पे जबान को लाता है, जबान को बाहर निकालता है। सकीना ने अपने प्यास को न देखा, अपने प्यास को बयान न किया। अगर हजरत अब्बास से किसी चीज के बारे में बयान किया तो कहा, ए मेरे चचा जान, मेरा छोटा सा भाई 6 माह का, वो अपने प्यास की शिद्दत की वजह से अपने जबान को होठों पे लगा रहा है ना, देखा नहीं जाता, चचा जान पानी ला दो। हजरत अब्बास ने सकीना की दरखास्त को कबूल किया, मशकीज़ा उठाया, मशकीज़े को टांगा, तलवार उठाई, घोड़े पे सवार हुए, नहरे फुरात का रुख किया। नहरे फुरात की तरफ जब जाने लगे, इमाम ने देखा, इमाम फरमाते, अब्बास किधर? कहा, हुसैन आज मैं नहरे फुरात जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? पानी लेने के लिए जा रहा हूँ। हौज़े कौसर पर मेरे सिपाही हौज़े कौसर का जाम लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं। हौज़े कौसर पर मेरे सिपाही अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते जामे कौसर लिए हुए हैं, जामे कौसर। बस चंद लम्हों के बाद वो उसको मैं पीने वाला। बेशक इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ अब्बास, तुम मेरे काफिले के सिपा सालार हो, तुम मेरे काफिले के सिपा सालार हो, हुसैनी खेमे के पहरेदार हो। बेशक तुम्हारी बात आलम कौन उठाएगा? कहा, ये तो ठीक है, मैं सिपह सालार हूँ, आपके खेमे का पहरेदार हूँ, हुसैनी परचम को मैं लहरा रहा हूँ, हुसैनी खेमे की निगरानी फरमा रहा हूँ। लेकिन या इमाम, मुझे इजाजत दीजिए, मैंने सकीना से वादा कर लिया है, पानी लेके आऊंगा, अब मुझे इजाजत चाहिए। इमाम ने इजाजत फरमा दी है। मैदाने जंग में गए हैं और नहरे फरात की तरफ अपने घोड़े के लगाम को खींचा, घोड़ा भी समझदार चल दिया। यजीदियों के पास पहुंचे, इरशाद फरमाया, ऐ यजीदियों, इतने अंधे हो गए, अहले बैत पर पानी बंद कर दिया। लालच बहुत बुरी बला है। यजीदी लालच में थे, लालच में हुकूमत की लालच थी, लालच अंधे हो गए थे, अहले बैत पर पानी बंद कर दिया। आपने तकरीर फरमाई, आप भी तौबा का दरवाजा खुला, आ जाओ, कदम हुसैन में आ जाओ, निजात मिल जाएगी। बेशक निजात का परवाना अगर तुम्हें चाहिए, इमाम हुसैन के कदमों में आ जाओ। तकरीर की यजीदियों ने आपकी तकरीर का जवाब जगाइए,
तकरीर का जवाब किससे दिया? तीर से। जब तीर सामने से आया, हमारे बुजुर्गों ने कहा था हम छेड़ते नहीं, और जब कोई छेड़ देता है तो छोड़ते नहीं। छेड़ा नहीं, सामने से छेड़ा गया, तलवार को लहराया, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। जब सदा को बुलंद फरमाया, तलवार चलाई, मैमना पे तलवार चलाई, मैमना साफ, मैसरा पे तलवार चलाई, मैसरा साफ। साफ करते हुए लोगों को, यजीदियों को वासिले जहन्नम करते हुए नहरे फुरात पे पहुंचे। मुख्तसर में कत्ल करते नहरे फुरात पर पहुंचे। मशकीजा भरा टांग दिया, मशकीजे को पानी से भरा टांगा, चुल्लू में पानी लिया, 3 दिन के प्यासे हैं पी लूं। जैसे चुल्लू में पानी लिया, याद आया खेमे के जो अफराद थे, छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी प्यास। हजरत अली असगर के सूखा हुआ जो हक का याद आया, सकीना सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सूखा हुआ गला याद आया, प्यास की शिद्दत याद आई, पानी को नहरे फरात में फेंक दिया। इरशाद फरमाया अपने घोड़े से, पानी पी ले, मौका चाहे, आगे अपना पी ले। कोई और होता तो कहता हाँ हाँ पी लेता, लेकिन वो इंसान नहीं था, इंसान नहीं, घोड़ा का जानवर। उसने जब इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई ने कहा तू पानी पी ले, यजीदियों ने हम पर पानी बंद किया है, तू पी ले। नहीं, ए अब्बास मैं पानी को नहीं। कहा क्यों? कहा मैं यजीदी होता तो पी लेता, मैं हुसैनी के खेमे में रहने वाला हूँ, पानी नहीं पीऊंगा। इशारा अस्बे ताजी को किया था पानी पीने का, प्यासा गर्जे था घोड़ा मगर वक्फे करीने का, पानी नहीं पिया, मना कर दिया। आखिरकार हजरत अब्बास अलमदार खेमे को पीठ पर लादते हैं, लादने के बाद घोड़े पर सवार हो गए, प्यासे मरकब पर प्यासा गाजी सवार, और वो मरकब प्यासे खेमे में जाने के लिए तैयार। उसकी रफ्तार भी बुर्क़े रफ्तार थी, रफ्तार के साथ वो घोड़ा दौड़ता हुआ हजरत इमाम हुसैन के खेमे की तरफ बढ़ रहा था। जब उमर बिन साद ने देखा कि ये इमाम हुसैन का भाई हजरत अब्बास अलमदार अपने पीठ पर मशकीज़ा पानी से भरा हुआ खेमे की तरफ ले जा रहे हैं, तो उमर बिन साद पुकारा, ऐ यजीदियों देख लो देख लो, हजरत अब्बास अगर इस मशकीज़े को अपने खेमे में पहुंचा देंगे तो अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ 3 दिन के प्यासे हैं, 3 दिन के भूखे हैं, बहादुरी का ये आलम, अगर पानी पी लेंगे शिकम शेर हो जाएंगे, तो कसम अल्लाह की एक भी यजीदी बच के नहीं जाएगा। उसने कहा, उमर बिन साद, उसने कहा पानी पहुंच गया अगर तो कोई यजीदी बच के नहीं जाएगा। अरे 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, नन्हा सा मुजाहिद करबला में आता है, नक्शा बदल के चला जाता है, अगर ये तो जवान है जवान, अगर ये पानी को शिकम शेर होकर पी लेंगे तो अल्लाह की कसम कोई यजीदी यहाँ से बच के नहीं जाएगा। लिहाजा ऐसा किया जाए कि चारों तरफ से घेर लिया जाए, एक बारगी हमला किया जाए। अल्लाह अल्लाह, एक बारगी हमला होने लगा, एक जालिम ने आपके बाएं बाजू पर वार किया। बायां बाजू जिस्म से अलग, अगर हमें थोड़ी सी अगर जख्म हो जाए तो हम उसकी तकलीफ को बर्दाश्त करने की हमारे अंदर क्षमता नहीं होती। हम फौरन डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब पट्टी कर दीजिए, दर्द बहुत हो रहा है। लेकिन वाह हजरत अब्बास अलमदार, आपका बाजू कट गया, लेकिन आप जर्रा बराबर आपको दर्द का एहसास नहीं हुआ। वो अल्लाह के शेर की हिम्मत देखो, बायां बाजू जिस्म से अलग है, दाहिने बाजू में दाहिने बाजू से पकड़ा है, मशकीज़े की रस्सी को तस्मा जिसको कहते हैं, दाहिने कंधे में टांग लिया। एक जालिम आया और आने के बाद आपका दाहिना बाजू भी काट दिया, दाहिना बाजू भी कटा। और कोई होता तो हिम्मत हार जाता। वो अब्बास थे, अब्बास हजरत अली के साहबजादे थे, दोनों हाथ कट गए। क्या किया? हिम्मत नहीं छोड़ी, मशकीज़े की रस्सी को मुंह में दबाया, मशकीज़े की रस्सी को मुंह में दबाया। दबाने के बाद खेमे की तरफ बढ़े,
जालिम ने तीर चलाया, उस जालिम ने तीर चलाया, ऐसा तीर चलाया अल्लाह की कसम कि वो तीर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशीने को छेदता हुआ बेबस हो गया सीने में। जब बेबस हुआ है सीने में तो बेबस होगा ये अल्लाह का शेर जमीन पर तशरीफ ले आता है और पुकारता है या हुसैन या खाविद अदरिकनी, ए हुसैन मुझे संभालना। इमाम हुसैन गए हजरत अब्बास के पास, चंद सांसों का मेहमान है अल्लाह का शेर, उठाया सर को गोद में रखा, रखने के बाद हजरत अब्बास कहते हैं भाई मुझे माफ कर देना, मेरी सकीना से कह देना कि वो भी मुझे माफ कर दे, मेरी सकीना से कह देना वो भी मुझे माफ कर दे, इसलिए कि मैंने मुझसे वादा किया था मैं पानी लेके आऊंगा, वादा पूरा माफ कर देना। सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा से कहना माफ कर दे। आप अपना कहते हैं ये अल्लाह का मुक़द्दस शेर मैदान गम में शहीद हो गए, रूह कब्ज़े मुंसरी से सवार कर जाती, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बार बार हमें मोबाइल दिखाया जा रहा है, साइड हो गया, दुरूद शरीफ पढ़ लें, खत्म, गुफ्तगू नहीं, दुरूद शरीफ पढ़। اللهم صل على سيدنا الشفيعين حبيبك مولانا محمد بن صلى عليه الصلاه والسلام على نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم। ना है आप तुम करते रहो करो पढ़ो पढ़ो, ये लोग सुनेंगे ढोल वाले हैं, सुनना है तो मोबाइल में दिखाइए। देखिए अगर आप दिल से सुने तो सुनाऊं, दिल में अगर खलबली है तो मैं खत्म करने के लिए अभी तैयार हूं, खत्म कर दूंगा, लेकिन जब नाव पे सवार हो, पानी नाव में हो, कभी भी आप सफर करें दो नाव में पांव रख के सफर में करें, दो नाव में पांव रखेंगे तो नुकसान बहुत भारी होगा, जान का नुकसान। तो अगर सुनना है तो मोहब्बत से सुने, नहीं सुनना है दिल में झुकझुकी रखना है कि टाइम 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 टाइम, तो फिर खत्म किया जाए। सही है, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। तमाम जान साहब की बात दीगर शहीद हो रहा, हजरत इमाम हसन का लख्ते जिगर कासिम, दुनिया जिसको हजरत कासिम कहती है, कासिम आंखों में आंसू है, शौके शहादत दिल में है, सुभान अल्लाह, आंखों में आंसू, लोग कहेंगे रोते क्यों थे, नादानो वो आंसू इसलिए नहीं थे कि शहादत जो है मरने के लिए जा रहा हूं, नहीं, इसलिए आंखों में आंसू आए थे कि इजाजत मिले अपनी जान को कुर्बान करने। बेशक आंखों में आंसू, दिल में शौक शहादत, पहुंचे इमाम के कदमों में, कहा चाचा जान मैं भी जा रहा हूं मैदान करबला, इजाजत दीजिए करबला में के मैदान में जा रहा हूं, इजाजत मांगी है। ए कासिम इजाजत नहीं दूंगा, क्यों नहीं दोगे? कहा मैं जब तुझे देखता हूँ अपने भाई हसन की याद आ जाती है, जब तुझ पर नजर पड़ती है चेहरे को मैं देखता हूँ, मैं अपने बड़े भाई की मुझे याद सताने लगती है, याद आ जाते हैं। ए कासिम मैं तुझे अपने सामने शहीद होता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए इजाजत नहीं है, इजाजत नहीं। रोने लगे, रोने, शौक शहादत देखो, हमारे बच्चे हमसे दौलत मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, न दिया जाए तो रोते हैं, लेकिन इमाम हसन का लख्ते जिगर अपनी जान कुर्बान करने के लिए इजाजत मांग रहा है, इजाजत न मिली तो रो रहे। ख्याल आया, दिल में ख्याल आया, कौन सा ख्याल कि अब मेरे बाप ने मैदान मदीना शरीफ में मुझे एक ताबीज अता फरमाया था और इरशाद फरमाया था, ऐ मेरे लख्ते जिगर मेरे नजर सुन, अगर तुम पर मुसीबत के पहाड़ टूट पड़े ना, मुसीबत चारों तरफ से घेर ले, तो इस ताबीज को खोल करके देख ले। याद आ गया मेरे बाबा ने
मदीना शरीफ ने मुझे एक तावीज दिया था, तावीज, और इरशाद फरमाया था मुसीबत के वक्त खोल करके देख लेना, इससे भारी मुसीबत तो कभी और आ ही नहीं सकती, इससे भारी मुसीबत नहीं आ सकती। हजरत कासिम गए खेमे के अंदर, तावीज को दाहिने हाथ से खोला, अपने बाजू से खोलने के बाद उसकी सिलाई को तोड़ा, तोड़ने के बाद उस जो है तावीज को खोलते हैं, तावीज को खोला तो उसमें लिखा हुआ था, इमाम हसन ने लिखा था, ऐ मेरे शहजादे कासिम सुन, जब तेरे चचा जान मेरे हुसैन, मेरा भाई मैदान करबला में हो, तो ऐ मेरे लखते जिगर उनके कदमों में अपनी जान को कुर्बान भाई इमाम हसन अपने बेटे से कह रहे हैं, और एक खाताए खात उसमें लिखा था, ऐ मेरे लखते जिगर, करबला का मैदान हो, इमाम हुसैन पर मुसीबतों के पहाड़ टूटे हो, तो ऐ मेरे लखते जिगर अपनी जान को बचाना नहीं, और बचाने के लिए भी नहीं देखा, पहले पहुंच गए थे। हजरत कासिम पहुंचे इमाम की बारगाह में, चाचा जान देखिए, ये लेटर देखिए, ये खत देखिए। इमाम ने मुलाहिजा फरमाया, देखा तो लिखा हुआ था, इमाम पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुलाहिजा फरमाया, देखा, आंखों से आंसू जारी हो गए। भाई याद आए, इजाजत मिली है, मैदान करबला में पहुंचे मुकाबला करने के लिए, और जब मैदान करबला में पहुंचे मुकाबला किया, मुकाबला हो रहा है। अरज़क एक पहलवान था, बड़ा नामी गिरामी पहलवान, अरज़क नाम था, अरज़क, उसके 4 बेटे थे, और उसकी पहलवानी, उसकी बहादुरी का शोहरत गुफा और इलाका वगैरह तमाम इलाके में मशहूर था, उसकी शोहरत की शोहरत। उमर बिन साद ने कहा, ए अरज़क जा मुकाबले में। कहा मेरी तौहीन है। कहा तौहीन, कैसी तौहीन? कहा मैं बच्चों से मुकाबला। बच्चा, जालिम को क्या पता था, ये नौजवान है, नौजवान, इनकी रगों में शेरे हैदरी है, अल्लाह समद। कहा मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा मैं अपने बेटों को भेज दे रहा हूं। बेटों को भेजा, भेजने के बाद इमाम कासिम के पास आया मुकाबला करने के लिए। एक बार मारा खत्म, दूसरा बेटा आया इंतकाम लेने के लिए, उसको भी कत्ल कर दिया। इतने में तीसरा बेटा आया इंतकाम की नियत से, बदला लेने की नियत से कत्ल। चौथा आ गया, जब 4 बेटे शहीद हुए, खानदान मिटने लगा, तो अरज़क ने कहा अब तो जाना पड़ेगा। आया मुकाबले में आया, आने के बाद इमाम कासिम की बारगाह में आया। हजरत इमाम कासिम ने अपनी तलवार को लहराया, लहराने के बाद जैसे ही मारा, एक ही बार में जमीन को चूमने लगा। जहन्नम के दरोगा इंतजार कर रहे थे इस शक्ति का। जालिमों का मामूल था, जब देखते थे नक्शा अलग हो रहा है, हमारे खिलाफ जा रहा है, फिर हमला करते थे। चारों तरफ से हमले हुए, शहीद किया। हजरत कासिम जब शहीद हुए तो सुनो, गौर से सुन लो, जब हजरत कासिम शहीद हुए थे तो मैदान करबला के अंदर ही यजीदियों ने खुशी मनाई, और खुशी मनाने के बाद नक्कारे बजाए थे, नक्कारे, कबल बजाया गया था, जिसको कबला कहते हैं। यजीदियों ने बजाया, यजीदियों ने बजाया था। आपकी शहादत पर ऐ इमाम हुसैन के गुलामों, अगर गैरत हुसैन जिंदा है तो तारीख पढ़ लो, तारीख। झूठी मोहब्बत न करो। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, अगर दिल पे लगे तो लग जाए, अगर दिल फट जाए तो फट जाए। और ये खुला चैलेंज है, चैलेंज। अगर इमाम हुसैन के खानदान के एक फर्द को, अगर इमाम हुसैन के खानदान के एक फर्द के बारे में तुम शहादत दिखा दो कि इमाम हुसैन के खेमे में किसी ने नक्कारे बजाए हो या किसी ने ढोल बजाए हो,
اگر تاریخ دکھا دے اللہ کی قسم یہ سراج الدین قادری کا رہے گا اور اگر نہیں دکھا سکتے ہوگا کہ یہ سب باتوں سے توبہ کرو امام پاک یہ بیچ میں پوری بری سب ختم ہوا لا تب اے شانتی سے اندر بڑی بڑا درود شریف پڑھیں درود شریف پھر سے دہرا دینا مولانا محمد الجود والکرم میرے ساتھ مل کے پڑھیں اللہم اور صلی آخری اللہ دن ہے آپ یہاں جمع ہوں اس کے بعد پتہ نہیں آپ کہاں ہوں میں کہاں ہوں گا اگر زندگی نے وفا کیا تو پھر ملیں گے انشاءاللہ اور اگر زندگی نے وفا نہ کیا تو ہو سکتا ہے ملاقات ہو نہ ہو ہم نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر کے قبرستان پہنچا اگر قسمت نے ساتھ دیا تو اگلے سال ملاقات ہوگی عبد القادر آرام سے اپنی تقریب کے اختتام میں نبی کے نام سے حضرت حسان کی سنت ادا کرتے درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا الشفيعين حبيبنا كريم مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه وسلم عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنیں اپنے نبی کی تعریف مچل کریں سب سے اولا سب سے اولا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہے سچا جن کے قلبوں کا دھون ہے آب حیات جن کے قلبوں کا دھون ہے آب حیات اے مسیحا ہمارا نبی ہے مسیحا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی غمزادوں کو رضا مجتدی کی ہے غمزادوں کو رضا مجتدی کی ہے بے قصور کا سہارا ہمارا نبی بے قصور کا سہارا ہمارا نبی بے قصور کا سہارا
کی بارگاہ میں دعا ہے مولا صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق کہنے سننے بولنے میں جو غلطیاں ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام غلطیوں کو معاف فرمائے ایک مرتبہ کلمہ شریف کا ذکر کر لیں بلند آواز سے اور پڑھو ناشتے پڑھو ایک اور پڑھو پڑھ لو ناشتے پڑھ لو ناشتے پڑھ لو درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا الشفيعين حبيبنا مولانا محمد وعلى وسلم صلوا عليه الصلاه والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرتابہ قدم ہے سکانی سلطان زمن پھول سرتابہ قدم ہے تانی سلطان زمن پھول سرتابہ قدم ہے تانی سلطان زمن پھول سلطان زمن پھول پھول دہن پھول دفن پھول بدن جو مل جائے گل کا پسینہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی کرنا چاہے کبھی کرنا چاہے زمن پھول کیا بات رضا اس چمن سے دانے کرم کی کیا بات رضا اس چمن سے دانے کرم کی گہرا ہے کلی جس میں حسین حسن بے شک سبحان اللہ بے شک صحرا ہے کلی جس میں یا حسین علی